الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور کریں، اور جو آپ چاہتے ہوں اور جو آپ کی حاجت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب کے صدقے وہ آپ کو عطا کرے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ جلدی اور اچھی جگہ پہ رشتے کا بہترین وظیفہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتانا ہے آپ نے ویسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ جو ہے وہ 100% ہوگا۔ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی ملے گی، اور یہ سورہ فاتحہ کا بہت بہترین وظیفہ ہے۔ ویسے تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ بہت سے کاموں کے لیے ہے، لیکن آج میں آپ کو اس کا شادی کا بہترین وظیفہ جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پڑھنے میں اور دوسرا اس کے عمل میں۔ تو میں آپ کو آج جو اس کا وظیفہ بیان کروں گا، آپ نے اسی طرح کرنا ہے، اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آپ نے اسی طرح دعا کرنی ہے جو میری بیٹی اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی، اور اگر کوئی بھائی یا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی بہت بہترین اور اچھی جگہ پر جلد ہی رشتہ ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اور اس سورت میں 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں، اور 140 حرف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو دعا بھی کہتے ہیں اور سورت بھی کہتے ہیں، اور سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ اسی دعا کا ہے۔ اسی کے ذریعے ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور جو ہمارے لیے بہتر ہوگا وہ ہمیں عطا کرے گا۔ اور ایک بات کا آپ نے یقین کر لینا ہے یہ کہ اگر ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اگر ہم اللہ سے دعا کریں تو اللہ کی ذات ہمارے لیے اس کو بہترین کرے گی۔ اگر کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی کسی بھی قسم کی ہے، کوئی بھی آپ پہ آزمائش ہے، تو یہ یقین رکھیے گا کہ وہ اللہ کی ذات آپ کو آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وہ آپ کے لیے وہاں سے راستے نکالے گی، وہاں سے آپ کے لیے ہر چیز کا انتظام کرے گی جو آپ کی ہماری وہم و گمان اور سوچ میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کو آپ نے اس نیت اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہماری شادی جلد ہو جائے، اور جہاں پہ ہم چاہتے ہیں وہاں پہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ اتنی بابرکت ہے، یہ ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے رہبر، محبوب رب، تمام نبیوں کے سردار، شافع روز محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن پاک اپنے الفاظ اور معنی دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ہر سورت اور ہر آیت، ہر لفظ، ہر معنی جو ہے وہ بابرکت ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شادی کا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسی پہ
मैं आपके साथ बात करता हूँ, इसी का वजीफा आपको बयान करता हूँ। एक बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो हर चीज़ पे कादिर है और हर चीज़ का बेहतरीन सुनने वाला और जानने वाला है। हमारी जो भी मुश्किल, जो भी परेशानी है, जो भी शादी में रुकावट है, जो कुछ भी है, वो अल्लाह से कहें। कोई भी रुकावट, कोई भी पत्थर, कोई भी दीवार हमारे लिए अहमियत रखती है, हमारे आगे रुकावट डाल सकती है। उस अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ रुकावट नहीं। मेरा अल्लाह ज़मान व मकान से पाक, मेरे अल्लाह की ज़ात हर चीज़ से पाक है और वो वहदहु ला शरीक है जो हर चीज़ पे कादिर है। मेरे अल्लाह का सुनना कैसा है? आप जुबान से पुकारो तब भी वो सुनता है, आप होठों से आहिस्ता पुकारो तब भी वो सुनता है। अब होठों को बंद कर लें, जुबान को सी लें, दिल से पुकारो। दिल से क्या, वो मेरा अल्लाह तो दिल की धड़कनों को भी सुनने पर कादिर है। सुभान अल्लाह। तो फिर अगर कोई भी हमें परेशानी है, कोई भी मुसीबत है, तो हम किसी से क्यों कहें? अल्लाह की ज़ात जो है वो हर चीज़ पे कादिर है। और ये जो शादी का वजीफा है, ये आपको इस पे मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो 100% है इंशाअल्लाह। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी। जब भी आप कोई वजीफा शुरू करते हैं तो हमेशा आपको यही कहता हूँ कि इसका रिजल्ट जो है वो चंद दिनों तक आना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी आपने इस वजीफे को कोशिश करनी है कि आप इसको 41 दिन तक लगातार पढ़ें। इस वजीफे की बरकत से हम अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो अल्लाह की मदद है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाओ। वो अल्लाह से ताल्लुक बनता है तौबा के साथ और उसके आगे दर पे हाजिरी देने के साथ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के साथ। अल्लाह की ज़ात को एक ही हस्ती से प्यार हुआ है जिसकी हम उम्मत में से हैं, एक ही हस्ती से जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक ही से मोहब्बत की अल्लाह की ज़ात ने, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह की ज़ात ने एक ही को अपना हबीब बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक कोई खातमुल अंबिया बनाया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम का नबी बना के भेजा गया। और ये बात ज़हन रखिए कि एक ही के हाथ में चाबी पकड़ी, और वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक के लिए जन्नत को मुज़य्यन फरमाया और ये भी कह दिया और इसका भी ऐलान कर दिया कि आपके बगैर जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। और अल्लाह से जुड़ने का रास्ता जो है, और सबके लिए एक ही रास्ता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलें और नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाएं और उनके तरीकों पे आ जाएं और उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लें। मेरे नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे बेहतरीन, सबसे आला और अफजल है। चलिए अब हम चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आपने 5 वक्त की नमाज जो है वो लाजमी पढ़नी है। औरतें घरों में पढ़ें, मर्द हज़रात मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करें तो ये ज्यादा बेहतरीन है। उसके बाद इस वजीफे को शुरू करने से पहले आपने सदका जरूर देना है और सदका देते हुए इस नियत का इजहार भी करना है कि मैं अपनी जानो माल कर अपने वजीफे का सदका दे रहा हूँ। और इसमें जो भी मुश्किल परेशानी होगी या जो कोई कमी रह जाएगी, वो अल्लाह ताला की ज़ात अपने फजल से उसे पूरा कर देगी। ये वजीफा आपने बाद नमाज इशा एक अलग कमरे में बैठ के आपने करना है और दौरान वजीफा आपने बोलना किसी से भी नहीं है। जब आप इशा की नमाज पढ़ लें, उसके बाद आपने 2 रक्त नफल अदा करने हैं हाजत के, अपनी शादी के। उसके बाद आपने खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है या टेक भी लगा लें। तो आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ना है और आपने सूरे फातिहा पढ़नी है। लेकिन पढ़नी किस तरीके से है ये मैं आपको बयान करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसकी आपने बार बार तकरार करनी है। या आपने एक सूरे फातिहा 1 मरतबा मुकम्मल आपने इस तरह से करनी है कि इस आयत को, ये जो आयत है, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है और
टोटल आपने सूरह फातिहा को 11 मरतबा पढ़ना है बाद नमाज ईशा। तो इस तरीके से आपने सूरत को मुकम्मल पढ़ना है एक मरतबा में, शुरू से लेकर आखिर तक आपने मुकम्मल पढ़ना है इसको एक जगह और एक वक्त मुकर्रर करके, और खुशबू का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। इसका मैनी क्या बनता है, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो जब आपने इस आयत का तकरार करना है एक मरतबा सूरह फातिहा में, आपने इसको 100 मरतबा इस आयत को आपने पढ़ना है, तो ज़हन में आपने ये तसव्वुर और अपना यकीन रखना है कि मैं इसको शादी के लिए कर रहा हूँ और मेरी जल्द अज जल्द और बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाए। तो मदद करने वाली जो है वो अल्लाह की ज़ात ही है। ये आपकी मर्जी है कि आप इस वजीफे को कर लें, तो या आप किसी और के पास जाएं और किसी को कहें। दर बदर भटकने से बेहतर ये है कि आप वजीफा कर लें। बहुत सारी माएँ बहनें जो है वो पैसे भी ज़ाया करती हैं, अपना वक़्त भी ज़ाया करती हैं, बर्बाद करती हैं। तो मैं उन्हीं माओ बहनों और बेटियों के लिए वजीफा बयान कर रहा हूँ। जब अब ये वजीफा शुरू करेंगे तो चंद दिनों के बाद ही इंशाअल्लाह ताला आप पर रहमत होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि अगर अल्लाह की ज़ात बेहतर नहीं करेगी तो उसकी ज़ात इस चीज़ पे कादिर है कि वो उस काम को बेहतरीन कर दे। जब आपका ये वजीफा 11 मरतबा सूरह फातिहा इस तरह से मुकम्मल हो जाए, उसके बाद में फिर आपने 11 मरतबा दूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआ करनी है। तो जब आपने दुआ करनी है, दूसरों पहले वज़ाइफ में बता चुका हूँ, किसी वजीफे का अमल तेज करने के लिए सबसे बेहतरीन है कि आपने जो पढ़ा हुआ होगा वो आप इसाले सवाब कर दें। जो आज तक जितने जन्नात और इंसान वफात पा चुके हैं मुसलमान, आप उन सभी को ये इसाले सवाब कर दें 11 मरतबा इस तरीके से सूरह फातिहा पढ़ी हुई। तो इससे आपकी रूहानी कुव्वत बहुत बढ़ जाएगी और किसी भी किस्म की आपकी शादी में रुकावट होगी या जो भी आपका काम होगा वो बहुत जल्दी से हो जाएगा। उनके लिए दुआ करें, उसके बाद आप अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे लिए बेहतरीन और अच्छा रिश्ता अता करे। तो यकीन कीजिएगा अल्लाह की ज़ात वहदहू ला शरीक वो ज़ात है जो अता करती है और बेहतरीन अता करती है। और याद रखिएगा कि इस तरीके से सूरह फातिहा आपने अलग कमरे में और दौरान वजीफा आपने बोलना नहीं है, और आपने सिर्फ इस तरीके से पढ़ने वाली सूरह फातिहा जो आपने अपना मकसद अपने ज़हन रखना है शादी का, आपने इस तरीके से पढ़ने वाली सूरह फातिहा से किसी भी और किस्म का काम नहीं लेना, वरना वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि किसी भी आयत के किसी भी हरफ के बहुत सारे मौक़लात होते हैं। अगर आप सिर्फ यही काम लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपका ये काम हो जाएगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अपने अर्श पे ऊपर आसमानों पे है, उसका इल्म उसकी ताकत जो है वो हर जगह पे है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिस वालिदैन जिस घर में हम पैदा हुए, जो हमारे माँ बाप बने, वो सिर्फ जरिया बने हैं हमारे पैदा करने में। हमें बनाया किसने? अल्लाह की ज़ात ने। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारे वालिदैन की हमसे कितनी मोहब्बत होती है, वो हमें भूलते नहीं, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह की ज़ात जो हमसे 80 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो हमें कैसे भूल सकता है? तो वो क्यों नहीं हमारी पुकार सुनेगा? उसको हम बहुत अजीज हैं, हम उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और ये उम्मत अल्लाह ताला की ज़ात को सब उम्मतों से ज्यादा प्यारी है। मेरे अजीज भाई और बहनों, इसको आपने 41 दिन तक लगातार करना है, इसमें नागा कोई ना हो। और अगर किसी चीज की समझ ना लगी हो तो नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे वक्त मिला इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन इंतजाम करे रिश्ते का। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक शेयर करने से जो कोई पढ़ेगा उसका सवाब आपको और मुझे हम सबको होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीफे के साथ। अल्लाह हाफिज।